Hello everyone, we are going to start off today's paper and आज का पेपर है अक्टूबर नवंबर 25 का पेपर 13। 1 घंटे का पेपर है, अपन फट करके निपटाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे है? तो पहले तो आप लोग इतना टाइम से जुड़े हुए हैं, यू आर वॉचिंग द वीडियोस, यू आर टेकिंग द क्लासेस रेगुलरली। आई होप इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं आप लोगों की। सही है, लेट्स स्टार्ट ऑफ। The following appeared in a newspaper article. The economies of the poorest nation have large international debt. क्या ये बात हक है? क्या ऐसा ही होता है? Yes, ऐसा ही होता है. The richest nations should cancel the debt of these nations to reduce poverty. And if you see, should आ चुका है. सही है? तो should, would, could is a normative statement. Poorest nation have large international debt. This is a fact, so this is a positive statement. Richest nations should मतलब opinion मतलब it is a normative statement. तो कौन सी दो चीजें हाईलाइट हो गई भाई? डी की दो चीजें हाईलाइट हो गई, therefore D is the right answer. What is meant by division of labor? क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो division of labor का मतलब क्या है? Look at the options. I want everyone to participate and I want everyone to give me the right answer. Your polling starts now. अब एक बच्चा सोचेगा, चल थोड़ी तफरी करते हैं क्लास में, और गलत जवाब देगा और वो बच्चा खुदकुशी कर ले। इट इज ए, लेकिन दो बच्चों ने सी सेलेक्ट किया। द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट पर आवर इज प्रोड्यूस्ड बाय ईच। क्या हो गया है? प्रोडक्टिविटी की थोड़ी बात हो रही है। सेम प्रोडक्टिविटी होती तो समझ में आता। इट्स डिविजन ऑफ लेबर, splitting a bigger task into series of individual smaller tasks. What would be the opportunity cost of a growth in an economy? अगर इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है तो opportunity cost क्या होगी? So the opportunity cost would be faster growth of services of than of manufacturing. जो हमने लूज किया है वो देखना है, तो लूज यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। नीड फॉर एन इंक्रीज लेवल ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, अगेन वी डिड नॉट लूज एनीथिंग ओवर here. Greater need for government intervention, again we are not losing, we're not sacrificing anything. The reduction of consumption if growth requires investment, we are reducing consumption, therefore D is the right answer. Which change in the way resources are allocated in an economy is consistent with moving from a planned economy to a market economy? तो planned से हम market में जाएंगे तो क्या होगा? यानी government intervention खत्म हो जाएगी। Minimum price guarantee for apple producer is removed. Yes, this is right. लेकिन hold your horses, we cannot say ये सही है until we have read all the um, options. The government authority established to monitor inefficiencies. तो भाई मार्केट इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट होती ही नहीं है। द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इज सब्सिडाइज, गवर्नमेंट नहीं है तो सब्सिडीज नहीं है। द सेल ऑफ एप्पल हैज मैक्सिमम प्राइस इम्पोज्ड, गवर्नमेंट नहीं है तो मैक्सिमम प्राइस भी नहीं होगी, तो ए होगा आंसर आपका। आ जाए द नेक्स्ट ऑप्शन, द नेक्स्ट क्वेश्चन। द PPC for an economy that produces two goods, X and Y or X. Both goods require labor to produce. Initial is PC, that is PCO. So this is PCO, this is PCO. Okay. What is the effect of PPC following the immigration ई वाला मतलब लेबर एग्जिट कर गया है इकोनॉमी से, तो लेबर कम हो गया, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज कम हो गई है, पीपीसी इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा। अब इनवर्ट शिफ्ट होकर ये पीपीसी 2 पे जाएगा या पीपीसी 1 पे जाएगा, ये है सवाल। तो इसका जवाब है इट कैन नॉट गो टू पीपीसी 2 बिकॉज ये पिविटल शिफ्ट है, यहाँ से भी ज्वाइंट है।
दोनों x और y की प्रोडक्शन कम होगी, सो वी विल मूव फ्रॉम पीपीसी 0 टू पीपीसी 1. So we'll move from PPC 0 to PPC 1. Therefore, B is the right answer. Have you seen any easier MCQ than this one? A good is provided by the government. Government देती है. Consumption by one person does not affect the amount of goods available for the others. मतलब अगर मैं कंज्यूम करूंगा तो दूसरों की कंजम्पशन कम नहीं होगी. What type of good must this be? Look at the options. And I'm starting the poll now. ये देखें, 80% पार्टिसिपेशन है. सही है. बच्चों ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने जवाब दिया है उन सब ने सही जवाब दिया है. दैट इज एक्सीलेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू. The demand curve normally slopes downwards. They may also shift from D1 to D2 or D3. या तो ये outward shift होगा या inward. What would cause a movement along D1 for good X and not a shift? Look at the options. मैं polling on करूंगा. बहुत आसान है. आपको टाइम दिया गया, आप सुकून से सोचें. ओके, हमारे पास प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स, क्योंकि ये मूवमेंट क्रिएट करता है. एड्स, इनकम्स, अदर गुड्स की प्राइसेस, दिस विल ऑल कॉज अ शिफ्ट. उसी प्रोडक्ट की प्राइस विल कॉज अ मूवमेंट. ओके, now the diagram shows the demand curve and supply curve for a broken rice. Broken rice मतलब आपके पास चावल के जो दाने होते हैं ना, सही है, वो साबुत दाने होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी कहलाती है. और अगर टूटे, उसको टोटे बोलते हैं पाकिस्तान में, तो वो टूटे हुए वो सस्ते बिकते हैं. इज कंसिडर्ड टू बी इंफीरियर गुड. सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भी इंफीरियर बोलती है. द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट एक्स at a price P1 and quantity Q1. What is the new equilibrium if the household income rises? So income rises, it's an inferior good, the demand is going to fall. When the demand falls, the equilibrium will be established at area D. So D is the right answer. Okay, another easy one. A good X has an income elasticity value minus 0.8. माइनस है तो माइनस का मतलब इट्स एन इंफीरियर गुड. क्रॉस इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू y इज ऑल्सो माइनस 0.8. क्रॉस इलास्टिसिटी में इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स एन इंफीरियर गुड. It's not a normal good. It's not a normal good. It's an inferior good and it's a complement. So C is the right answer. Okay, the next is calculation. Four firms produce furniture. Table shows PES for each firm. The price of furniture rises by 5%. Which firm would experience an increase in quantity supplied of 2.5%?
सही है। अब आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी है। सही है। अब आपने एक तरीका ये है 2.5 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आया 0.5। तो जिसका पीईएस 0.5 है वो आपका आंसर है। दैट इज टेक्निकली ये तरीका है। वरना दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि आप x अज्यूम करो, नीचे 5% दिया हुआ है, आंसर आपका 2.5 है क्योंकि एग्जामिनर ने बताया हुआ है, और आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास आंसर 0.5 ही आएगा। तो दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर। सही है। मूविंग ऑन, the diagram shows the demand and supply for a good original equilibrium is X. Say, what will be the new equilibrium if subsidies are given to firms for new machinery? सब्सिडीज दी जा रही है, तो सब्सिडीज की वजह से मेरे भाई क्या शिफ्ट होता है? इनिशियल D1 है और S1 है, तो वी आर एट एक्स। तो क्या शिफ्ट होगा सब्सिडीज की वजह से? सप्लाई शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड्स एंड डी इज द राइट आंसर। इज इट मी और आप लोगों को भी ये आसान लग रहा है? जरा चैट में तो बताओ। मुझे तो ये बहुत आसान लग रहा है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफी आसान है। लेकिन 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 it's due to two reasons. The paper might be easy, might not be easy, it's a subjective thing. लेकिन what is objective? You people have been preparing. अगर तो आप क्लासेस ही रेगुलर ले रहे हो तो मैं 7-8 पेपर सॉल्व करा चुका हूँ भाई। आप 7-8 पेपर का, 8 पेपर का मतलब इंटू 30 अगर आप करो तो 240 एमसीक्यूज तो मैं करा चुका हूँ। बाकी क्लासेस में भी अपन ने किए, आपने भी कुछ किए होंगे, तो आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है। इट्स नॉट ओनली के पेपर आसान है, बट ऑल्सो योर एफर्ट्स आर पेइंग ऑफ। Okay, next. The market for good X is in equilibrium when the price is 10. The government decides to set a maximum price of good X. Which maximum price would cause largest change in consumer surplus? We know that the equilibrium maximum price should be below the equilibrium. Should be below the इक्विलिब्रियम। सही है। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो एक ही है जिसमें बिलो द इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इफ इट इज अबव द इक्विलिब्रियम इट विल मूव बैक टू द इक्विलिब्रियम, तो सरप्लस चेंज ही नहीं होगा। सबसे ज्यादा चेंज तब होगा जब आप ए पे आओगे और जब आपकी प्राइस 9 होगी। तो अगेन एन इजी एमसीक्यू मैन, आई एम वेटिंग फॉर अ हार्डर एमसीक्यू। Assume the demand is price elastic. What will rise the most if indirect tax is removed? ये है मुश्किल एमसीक्यू एंड आई कैन गारंटी, लिख दो कि आप में से मेजॉरिटी बच्चा गलत करेगा। मेजॉरिटी, शर्त है। चलो, शर्त। जब अब देखते हैं, आसान है मुश्किल, बड़े है आसान, इजी 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 कर रहे थे ना बड़े। अब आओ, मैं पोल ऑन कर रहा हूं, आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ टाइम। आप पोल को क्लोज कर लें और स्क्रीन पे एक बार डायग्राम बना हुआ होगा, उसको टैप करेंगे, पोल वापसी खुल जाएगा। पहले आप ऑप्शंस देख लें। टेक योर टाइम, दिस इज अ बिट टेक्निकल। ओके। ओके, नाउ आई एम एंडिंग द पोल। आप लोगों को रिजल्ट दिखा दूं ना आप लोगों का?
50% आर राइट, सही है, 50% आर रॉन्ग। एंड ज़रा हम देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि टैक्स का कॉन्सेप्ट है और डिमांड इज इलास्टिक। रूल क्या था, जिसका छोटा होता है वो टैक्स ज़्यादा पे करता है। तो डिमांड इज इलास्टिक मीन्स कस्टमर इज पेइंग लेस टैक्स। तो हु इज पेइंग मोर टैक्स? द प्रोड्यूसर इज पेइंग मोर टैक्स। सो व्हेन वी रिमूव द इनडायरेक्ट टैक्स, तो जो टैक्स प्रोड्यूसर पे कर रहा था वो अब पे नहीं कर रहा, तो रेवेन्यू प्रोड्यूसर का बढ़ जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट, सही है। एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज, टैक्स रिसीट्स विल डिक्रीज। तो C was the right answer. Although, if you used elimination, you could have easily come to this conclusion. But बच्चा ये प्रोड्यूसर रेवेन्यू को शायद लिंक नहीं कर पा रहा था, दैट इज वाई मेजोरिटी ऑफ यू मेड इट रॉन्ग। अगेन, हर मुश्किल के बाद आसानी है और ये अगला क्वेश्चन उस आसानी को बता रहा है। द एरिया ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ ट्रांसफर पेमेंट। कौन सा ट्रांसफर पेमेंट होता है? मैं पोलिंग ऑन नहीं करूंगा, लेकिन आप ऑप्शंस खुद पढ़ें। ऐसी स्पेंडिंग फॉर नथिंग इन रिटर्न, सो दैट इज बी। सही है ना? इट वॉज इजी ना? आ जा। A government provides subsidies for a product with perfectly inelastic demand. So I'll make a perfectly inelastic demand. सही है? Yeah, I get it. What prevents producers from benefiting from the subsidy? तो ये आ गया मेरे पास सप्लाई कर्व P, और ये सब्सिडीज दे दी S1, तो ये हो गया P1। सबसे पहला सवाल ये है कि इस केस में सब्सिडी सारी किसको जा रही है? सारी की सारी कस्टमर को जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले वो P पे कर रहा था, लेट्स से 10, अब वो 8 पे कर रहा है, तो पूरी की पूरी ₹2 सब्सिडी कस्टमर को जा रही है। सब्सिडी इज मेजर्ड बाय द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन S एंड S1, सही है। तो सारी की सारी सब्सिडीज कस्टमर को जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, सही है। The subsidy causes a large reduction in prices as its price elasticity of demand is infinite. ये होता है जब perfectly elastic होता है, perfectly inelastic में नहीं होता। The subsidy causes large reduction in price of the product as its price elasticity of demand is zero. This is the right answer. और ये देखें, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, जब क्वेश्चन में ही परफेक्टली इन इलास्टिक बोला हुआ है तो रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक का सेंस नहीं है। सर वी आर कंफ्यूज्ड, व्हाट इज रिलेटिवली इलास्टिक, व्हाट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक? रिलेटिवली काट लो, इट्स इलास्टिक। रिलेटिवली काट लो, इट इज इन इलास्टिक। 16. The government intervenes in a market for good X. It fixes a minimum price above the equilibrium. Which situation explains why a government would do this? So, why is a minimum price imposed? Why would we want to increase the price of the product? It's a demerit good or it's a merit good? So, obviously, it's a demerit good. And the reason is to increase the consumption or decrease? The answer is to decrease the consumption. यार बहुत आसान, बहुत आसान। लेकिन अगला 17, ये अगली मेरी पेशेंट हुई। आप में से 40% या उससे कम बच्चे इसको सही कर पाएंगे, गारंटीड। जाओ एनालाइज करो एमसीक्यू, चैलेंज, खुला चैलेंज है। ओपनिंग अप द पोल। तो जिसने, दो बच्चों ने, तीन बच्चों ने जवाब दिया, एक ही सही है। अबे गंदा हो गया ना तो। कोई तुम लोगों ने मेरे साथ गेम कर दिए क्या?
चैट देखो, चैट को तो नहीं बता रहे तुम, चैट को तो नहीं बताया ना। आई वॉज रॉन्ग, आप लोग जीत गए भाई। 64% लोगों ने सही जवाब दिया है। दैट इज गुड। एक मिनट। हाँ, सही। इसका तरीकेकार क्या है? मार्केट प्राइस पे आने के लिए बेसिक प्राइसेस पे आप टैक्स को ऐड करते हो और इसको लेस करते हो। तो 320 माइनस 4, 316। Under which conditions will real GDP grow the fastest? सो द रियल जीडीपी किस वक्त सबसे तेजी से ग्रो करेगी? नॉमिनल जीडीपी को बढ़ना चाहिए तो बढ़ रही है। इन्फ्लेशन को या तो कम होना चाहिए या डिफ्लेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर टू है और ये भी टू है, मतलब रियल जीडीपी विल रिमेन द सेम। आपकी जीडीपी इंक्रीज हुई 2% से, इन्फ्लेशन के अफेक्ट को हटाने के बाद 2% कम हो गया, तो यहां पे इट विल रिमेन द सेम। सी में आपकी जीडीपी बढ़ी 2% से, प्राइस लेवल 2% कम हो गया, तो ये रियल जीडीपी को 2% मजीद बढ़ाएगा। तो इन टोटल 4% से आपकी रियल जीडीपी बढ़ जाएगी। सी इज द राइट आंसर। हमदा, हमदा बेटा, आपको अगर इस एमसीक्यू में इशू है, आप इसकी पिक्चर लें और क्लास के बाद आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। The government is planning to increase expenditure on defense. Half of its expenditure will be on equipment such as planes, weapons, which will have to be imported as it does not produce these equipments domestically. What is the initial impact of injection and leakages on the circular flow of income? तो आपके पास डिफेंस गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, लेट्स से 100 से, सही है, और आधा लेट्स से 50 इज इंपोर्ट, सही है। तो इंजेक्शन भी 100 की और विड्रॉल हुआ 50 का, क्योंकि इंपोर्ट इज अ विड्रॉल, या लीकेज, लीकेज सही 50 का। सो इनिशियल इंजेक्शंस इज ग्रेटर देन इनिशियल राइज इन लीकेजेस। इंजेक्शंस 100 थे और लीकेजेस 50 थे। Therefore, A is the right answer. Let's look at others. Initial rise in injection, which is 100, is greater than the initial fall in, fall तो नहीं हुआ है क्योंकि import कर रहे हो, तो fall in leakage तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। Initial rise in injection is smaller, नहीं smaller तो नहीं, it's greater. So that is how you will answer this question. सही है, हमने assume कर ली values ताकि हमारा काम आसान हो जाए। What might be a consequence in the fall of domestic price level? अगर प्राइस लेवल फॉल हो जाती है, मतलब डिफ्लेशन हो जाती है, तो क्या इम्पैक्ट होगा? द इम्पोर्ट्स विल बिकम मोर कंपेटिटिव। नहीं, डिफ्लेशन है, चीजें लोकली सस्ती है, तो इम्पोर्ट्स अनकंपेटिटिव होंगी। इंटरेस्ट रेट का कोई ताल्लुक नहीं है, काट दो ऐसे। परचेजिंग पावर ऑफ सेविंग्स विल फॉल, काट दो ऐसे। 100 फॉल नहीं होगी, 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की सेविंग है, सॉरी सुनो सुनो, 100 रुपए की सेविंग है, एक साल बाद अब वो 100 रुपये ज्यादा चीजें ले रही है क्योंकि प्राइस लेवल फॉल हो गई है, तो ये भी नहीं हो सकता। रियल वैल्यू ऑफ इनकम इंक्रीज, तो 100 रुपए की मेरी इनकम थी, 100 रुपए 1 किलो दूध खरीदते थे, अब 100 रुपए 1.5 किलो दूध खरीदेंगे, रियल वैल्यू, परचेजिंग पावर बढ़ गई। A steel producer changes to electrically powered furnaces to reduce emission of greenhouse gases. This results in job losses. Which type of unemployment is caused? क्या सही जवाब होगा? जबरदस्त, असफंद भी आया आज तो हमारे पास। इट्स टेक्नोलॉजिकल। अगर स्ट्रक्चरल लिखा हुआ होता तो स्ट्रक्चरल भी सही था, क्योंकि स्ट्रक्चरल इंक्लूड्स टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल, सही है। टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चरल इट्स द सेम थिंग। ब्रॉडर टर्म स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल दो तीन वजहों से होता है, टेक्नोलॉजिकल सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। ओके, the diagram shows the changes in a country's price level over a number of years. During which period of time did only disinflation, same question हमने किया है पहले,
पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या या ओ लेवल्स वालों के साथ सेम क्वेश्चन था, सही है, लेकिन वहां पे डिफ्लेशन था, दिस इज डिसइंफ्लेशन। तो डिसइंफ्लेशन कब हो रही है? 2021 में हो रही है और 2022 में हो रही है, मेरे ख्याल से 21 और 22। तो दिस शुड बी बी, सही है। डिसइंफ्लेशन का मतलब क्या है? लास्ट ईयर के मुकाबले में कम है प्राइसेस, तो ये हमारे पास हो गया 20 का। 21 में हमारे पास यहाँ पे आ गया, हमारे पास प्राइस इन्फ्लेशन रेट कम हो गया, और 22 में जीरो हो गया। तो इन्फ्लेशन रेट का फॉल होना पिछले साल के मुकाबले में, दैट इज डिसइंफ्लेशन। अच्छा, 2023 में इट्स नेगेटिव, लेकिन ये डिफ्लेशन है, तो हम इसको डिसइंफ्लेशन में काउंट नहीं करते। और फिर आगे बढ़ रहा है, तो दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो ये कॉन्सेप्ट है। Okay. The government increases basic rate of income tax to finance additional spending on apprenticeship and training. नहीं समझ में आ रहा, काट दो। Apprenticeship basically क्या बोलते हैं, आर्टिकलशिप या ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को होती है। What type of macroeconomic policies are being used? So tax is a fiscal policy, and additional spending on training is also a fiscal policy, and it's also a supply side policy, because education and training will increase the productivity of labor. So C is supposedly the right answer. आ जा, ये किनीशियन का LRAS आ गया। द डायग्राम शोज द इक्विलिब्रियम, output y, so we are over here, price level of P, the government aims to raise real output from Y to YFE, yani full employment, without increasing the price levels in the long run. Which fiscal policy change is most likely to achieve this aim? क्योंकि अगर हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं तो प्राइस लेवल तो बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग रन में वो बोल रहा है प्राइस लेवल्स वुड रिमेन द सेम। इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी। तो आपने बेसिकली सप्लाई साइड पॉलिसी को तलाश करना है। अब आप देखें ऑप्शंस आपके पास जो हैं उनको आप गौर से एनालाइज करें और देखें कौन सा सप्लाई साइड पॉलिसी के साथ भी लिंक हो सकता है। मैं आपके लिए पोल लॉन्च कर रहा हूं। ओके, आप लोगों के मैं आंसर्स देख ही रहा था, एंड वी फाउंड दिस डिफिकल्ट। ओके, लेट्स क्लोज। इसका सही जवाब ए है, बिकॉज व्हेन यू डिक्रीज द रेट ऑफ इनकम टैक्स, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। लॉन्ग रन में बिकॉज ऑफ लोअर इनकम टैक्सेस एमएनसीज आएंगी, बहुत सारे बिजनेस स्टैब्लिश होंगे, तो लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने डी यूज किया था, इंक्रीजिंग वेलफेयर बेनिफिट्स। इससे सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी लॉन्ग रन में? प्रोडक्शन का तो कोई इंसेंटिव ही नहीं है बढ़ने का, सही है ना? देयरफॉर डी विल नॉट इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई, सही। आ जाए, डिक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, ये तो हो ही नहीं सकता था। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सेल्स टैक्स, तो ये तो सेल्स टैक्स अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये एग्रीगेट डिमांड को तो अफेक्ट ही नहीं करेगी। और अगर हम इसको फिजिकल पॉलिसी से लिंक करें तो दिस वुड रिड्यूस एक्सपेंडिचर। तो ये फिजिकल पॉलिसी में हम डायरेक्ट टैक्सेस को ही काउंट करते हैं तो आसानी रहती है। आ जाए, द गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्स ऑन अ कंपनी प्रॉफिट फ्रॉम 28 to 20, which statement best
describes this policy. टैक्स का कम होना is a fiscal policy, तो आ जाए fiscal policy. अब क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है, इट्स ऑल्सो सप्लाई साइड पॉलिसी, तो सप्लाई साइड पॉलिसी भी हो गई. सही है. अब हमारे पास ए और बी में मुकाबला है. इट्स एन एक्सपेंशनरी और अ कॉन्ट्रैक्शनरी. सो इफ आई एम रिड्यूसिंग माई टैक्सेस, इट्स एक्सपेंशनरी, क्योंकि फिर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे. बिजनेस के ओनर्स के पास ज़्यादा प्रॉफिट होगा, दिल स्पेंड मोर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. सो इट्स एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. आ जाए, विच पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू हैव अ कॉन्ट्रैक्शनरी अफेक्ट, यानी एग्रीगेट डिमांड. कॉन्ट्रैक्शनरी अफेक्ट, कॉन्ट्रैक्शनरी का वैसे तो मतलब होता है कम होना, और नेशनल इनकम. तो कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो नेशनल इनकम को कम करेगी? आप सारे ऑप्शंस को देखें, सारे ऑप्शंस को देखें, फिर मैं पोलिंग ऑन कराऊंगा. 60% तक सही होने चाहिए बच्चों के. आई एम एग्जैक्टली राइट. 63% अभी तक बच्चों ने सही जवाब दिया. एंड इट्स अ गुड पार्टिसिपेशन रेट. 80% पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे. 57% बच्चों ने सही जवाब दिया है, विच इज़ सी. क्योंकि जब भी आप अप्रिशिएट करते हो, आपके एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम. सो एग्रीगेट डिमांड कम, नेशनल इनकम को कम करती है. सी इज द राइट आंसर. मैं देखता हूँ ए बी सी आप सबने सारे ही सेलेक्ट कर लिए, तो मैं अब समझा देता हूँ. इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करोगे, सेविंग्स कम होंगी, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. रिडक्शन इन इनकम टैक्स, अभी हमने ऊपर देखा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है उससे. इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. आ जाए, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी इनकम? प्राइमरी इनकम मतलब सिर्फ इनकम, और इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स. डिविडेंड्स received from Pakistani resident from shares in a domestic firm. Domestic firm, हाँ हाँ. तो डोमेस्टिक, मैंने पाकिस्तानी फर्म में लगाया और डिविडेंड मिल गया, तो ये तो करंट अकाउंट में आएगा. करंट अकाउंट में तो मुल्क के बाहर से पैसा आना जाना रिकॉर्ड होता है. प्रॉफिट्स ऑफ पाकिस्तानी बिजनेसेस एक्सपोर्टिंग गुड, तो सिर्फ प्रॉफिट, ये डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हुई हुई ना, अगेन डोमेस्टिक बिजनेस ही है. रेंट रिसीव बाय पाकिस्तानी रेजिडेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन अदर कंट्री, तो ये करंट अकाउंट में आएगा. सैलरी रिसीव्ड बाय पाकिस्तानी इंजीनियर फ्रॉम अ फॉरेन ओन्ड प्रोड्यूसर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में एमएनसी ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तानी को सर, तो ये करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन नहीं है. व्हाट इज मेंट बाय कंपैरेटिव एडवांटेज? हाँ भाई, आसान है, ये भी आसान है, बहुत आसान है. देखें, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है? आई अज्यूम 70% मुझे सही जवाब मिलेगा. एटी परसेंट सही है. 71%. ओह, चलो, 71% लोगों ने सही जवाब दिया. मेरी भविष्यवाणी सही हुई. अ कंट्री कैन प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी, कंपैरेटिव एडवांटेज में भी कंपेयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स. ए इज द राइट आंसर. बी वाज द मोस्ट selected incorrect answer. तकरीबन 17%. One country can produce more of a product using giving level of resource. बिल्कुल सही है, आप एक प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज कब होता है? व्हेन यू कंपेयर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो दिस इज इनकम्प्लीट.
और बाकी 13% बच्चों ने ना डी सेलेक्ट किया था, क्यों किया था? वन कंट्री इज मोर एफिशिएंट यूज ऑफ फैक्टर्स। हाँ, लेकिन अगेन दिस इज इनकम्प्लीट ना, इफ दे आर मोर एफिशिएंट दे आर प्रोड्यूसिंग मोर, सो कंपैरेटिव एडवांटेज है, ये पता कैसे चलेगा? व्हेन यू हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लेट्स से पाकिस्तान और चाइना है, वीट एंड थ्रेड है, 100, 200, 100, 300। तो चाइना इज एफिशिएंट इन बोथ, हम बोलते हैं चाइना हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ द प्रोडक्ट। कंपैरेटिव एडवांटेज तो तभी पता चलेगा जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगी। देयरफॉर ए इज द राइट आंसर। An economy specializes in the production of one product. It exports this product to obtain another product. तो पाकिस्तान मैंगो एक्सपोर्ट कर रहा है, बदले में तेल ले रहा है। Which type of diagram can show the combination of these products? लेकिन सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा है? प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। इन तीन में से आंसर है, जहां मैंने आपको बता दिया इन तीन में से आंसर है। मैं बोल रहा हूं तीन में आंसर है, बी इज नॉट कंसिडर्ड, तो बी आप बता रहे हो। ओके, सबसे पहले पार्टिसिपेट करें सब। 48% पे हमारे पास सही जवाब थे, विच इज डी। अच्छा, पीपीसी क्या दिखाता है? पीपीसी दिखाता है एक मुल्क, पाकिस्तान, यहां पे उसका प्रोडक्ट और उसी का दूसरा प्रोडक्ट, दैट इज पीपीसी। लेकिन यहां पे ये क्या बोल रहा है कि भाई हम स्पेशलाइज करते हैं, तो ये हो गया पाकिस्तान का प्रोडक्ट और ये हो गया चाइना का प्रोडक्ट। तो अब ये कैसे शो होगा? ये भी पीपीसी की तरह ही बनेगा, लेकिन उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व। आगे भी बात समझ में? मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान इतना एक्स देगा तो इतना वाई मिलेगा, और अगर पाकिस्तान, अच्छा, ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व, तो बेसिकली इट्स अ ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व। ये शायद इस तरीके से बनता नहीं है, ऑल्दो आई हैवंट सीन दिस इन अ बुक एज वेल, आई विल जस्ट फिगर दिस आउट। ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज भी नहीं हो सकता। रीजन क्या है इसकी? रीजन ये है क्योंकि कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज पीपीसी ही शो करता है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। सही है। अच्छा, ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व्स जहां तक मेरे दिमाग में आ रहा है ना, तो ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व्स ये है, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। आपने बनाया, ये चाइना का हो गया और ये पाकिस्तान का हो गया, तो दिस इज अ ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व। सही है, हमने पढ़ा, दिस इज बेसिकली अ ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व। द मेन एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री एक्स इज ऑयल, world demand is inelastic, सही है ना? PED is inelastic, let's say 0.4 inelastic. The world supply of oil is reduced by the major oil producing company, including country X. Imports into country X are unchanged. हम उतना ही इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि सप्लाई कम हो गई है, तो सप्लाई कम हो गई है। What are the effects of this action by major oil producing countries on the term of trade? On the term of trade and current account? अच्छा, दो चीजें। What are the effect of this action by major oil producing countries on the term of trade and current account on the balance of payment of X? X एक्सपोर्टर है भाई, एक्सपोर्टर है, सही है ना? एक्सपोर्टर है, तो जब वो एक्सपोर्ट करेगा और शॉर्टेज हो गई है, तो प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, तो टर्म ऑफ ट्रेड विल इंप्रूव। एंड बिकॉज इट इज इन इलास्टिक, तो प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी सी कम होगी, तो रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा।
का। हेंस आपका आंसर आएगा ए। सही है। सो दिस वॉज इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप उस एमसीक्यू की पिक्चर लें। पेपर था अक्टूबर नवंबर 25 13। आप उसकी पिक्चर लें, आप मुझे भेजें। आई एम अवेलेबल, आई विल चेक इट, आई लेट यू नो, आई विल आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर कमिंग टू माई क्लास। इंशाल्लाह आखिरी क्लास में आप मुलाकात